application we have started yesterday. 2 sums we have solved yesterday already, and with that 2 problem, I must say that you must got the understanding that how to solve such type of questions, which is based on the application of arithmetic progression. Okay, so now see here, this is the third question. From all the words problem, like from all the 6 chapters, only the words problem from this chapter is very easy, which is very easy to conclude that, because you have very limited options. Either you have to find out the tn term or nth term or any kind of term, or you have to find out the sum of some terms. Okay, so it is very easy. So now see the third question here. Sachin invested in National Certificate Saving Scheme. In the first year, he invested rupees 5,000. Now see here, in the first year, he invested rupees 5,000. Okay. In the second year, he invested rupees 7,000. In the third year, he invested rupees 9,000 and so on. Okay, मतलब यहाँ पर आपको बता दिया गया कि फर्स्ट ईयर में उसने 5,000 इन्वेस्ट किया था, सेकंड ईयर में 7,000 एंड थर्ड ईयर में 9,000, so on. Means gradually he invested. Find the total amount that he invested in 12 years. So you have to find out the total amount he invested in 12 years. Means total 12 years he invested, and how he has invested? He invested. So we can write down here, Sachin invested in NCS. I will write it in abbreviation form. Invested in NCS 5,000 in first year. Okay, 7,000 in second year, 9,000 in third year. Okay, so it means that they are in AP. So all the amounts are, therefore it is an AP. मैंने आपको बताया था कि whenever you are writing the solution, so your first step should be whatever numbers are given to you, whatever investment, whatever in the question is given to you, they must be in AP. So you have to prove it is in AP. Okay, तो ये आप कैसे sentences लिखकर आप उसको बता सकते हो कि it is in AP. So 5,000 in first year, 7,000 in second year, 9,000 in third year, it is in AP because D is equal to 9,000, sorry 7,000 minus 5,000 is equal to 2,000. Okay, हमारा D भी आ गया है, common difference same है. Okay, D is equal to 2,000. And what is the value of A? Value of A is equal to 5,000. The first term, in the first year he invested rupees 5,000. So that is the first term. तो देखिए यहाँ पर हमने पहले क्या किया, हमने लिख लिया कि 5,000 फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया, 7,000 सेकंड ईयर में इन्वेस्ट किया है. Their gradual it is in AP because T is equal to 7,000 minus 5,000 is equal to 2,000 is common difference. Okay, so 2,000 is common difference. Okay, A आपका आ गया 5,000. Now he invested in 12 years. He invested total 12 years. So N is equal to 12. N is equal to 12. And what you have to find out? How much he invested. Total amount. आपको total amount means S12 आपको find out करना. S12. In 12 years, how much he invested? Okay, in all. So आपको यहाँ पर SN का formula use करना है. So you can use the formula of SN. SN is equal to N by 2 under bracket 2A plus N minus 1B. Okay, this is your formula. Now you can put all the values because you have all the values. बहुत easy था, बहुत easy sum है ये. S12 is equal to 12 upon 2, 2 into 5,000, N 12 minus 1, D is 2,000. Okay, now 12 upon 2, 2 6 are 12, 6, 2 5 are 10, means 10,000. 12 minus 1, 11, 11 into
2000, okay, 6 under bracket 1000 plus 11 2s are 22, 22,000. Now 1000, sorry, 10,000 plus 22,000, 6 into 0, 0, 0. How many zeros are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. Okay. Now you will get again 7 zeros are there. Now 6 2s are 12. 6 2s are 12 and 1 13. So 1,32,000 he invested in 12 years. Okay. So sum was not complicated. Even the calculation what you have done is not complicated. बहुत easy sum था, बहुत simple था कि उसने 12 years total saving की है, 5,000, 7,000, 9,000. तो 5,000 आपका first term हो गया. Number of years he invested, that is 12. Therefore n is equal to 12. Okay, आपको S12 फाइंड आउट करना था, आपको टोटल फाइंड आउट करना था कि उसने टोटल फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 years, कि उसने टोटल कितना सेव किया. तो टोटल आपको फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एसए. फॉर एग्जांपल अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा देता कि हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन द 10th year, 10वें साल में उसने टोटल 12 ईयर इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना रहता कि उसने 10th ईयर में कितना इन्वेस्ट किया 10th ईयर में. सो योर फॉर्मूला विल बी चेंज. टी 10 आ जाएगा, एन की वैल्यू 10 आ जाएगी, अदर्स वैल्यू विल बी सेम. तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताते चल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन वही रहता है बट द पैटर्न दे आर गेटिंग चेंज. तो हम इसको अलग अलग तरीकों से चेंज कर सकते हैं. या अगर वो 20 years इन्वेस्ट कर रहा है, सो हाउ मच ही इन्वेस्टेड इन 20 years, तो आपका एन की जगह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा. ठीक है. तो इस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन. Okay, now see the fourth question. Fourth question is there is an auditorium. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये इजी क्वेश्चन भी है, आ भी चुका है. There is an auditorium with 27 rows. ये आ चुका है, तो थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है आपको. 27 रोज है एक ऑडिटोरियम में ऑफ सीट. ओके, देयर आर 20 सीट्स. देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो. जो फर्स्ट रो है उसमें 20 सीट्स है. 22 सीट्स इन सेकंड रो, 24 seats in third row and so on. Okay, यहाँ पर भी आपको एपी में दिया हुआ है कि फर्स्ट रो जो है टोटल 27 रोज है. ओके, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22 सीट्स है और 24 सीट्स है थर्ड रो में एंड सो ऑन. इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वो. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स. देखो ये क्वेश्चन में है इंटरेस्ट, आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. 15th रो में कितनी सीट्स है ये आपको फाइंड आउट करना है. एंड फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स. फाइंड हाउ मेनी total seats in the auditorium. मतलब ऑडिटोरियम में टोटल कितनी सीट्स है, तो टोटल कितनी रो है 27 रोज है. तो आपको टोटल 27 रोज में कितनी सीट्स है ये आपको फाइंड आउट करना है. और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि 15th रो में कितनी सीट्स है. जैसे फर्स्ट रो में 20 है,
सेकंड में 22 है, थर्ड में 24 है, तो 15th में कितनी है? ओके, सो राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इट इज इन एपी और नॉट। ओके, सो इन एन ऑडिटोरियम, ओके, क्या है? 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, 22 seats in second row, 24 seats in third row, and so on. Okay. Okay. So therefore it is an AP. It is in AP. Okay. ये हमारा एपी में, ये हमने बता दिया इट इज इन एपी। देखो अभी हमने लिख लिया है, पहले हमारा जो बेसिक रहता है हमने वो लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें गिवन निकालना है, व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ए इज 20 फर्स्ट रो की सीट्स कितनी है? 20। डी इज T2 minus T1, that is 22 minus 20, that is 2. So D is 2. अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू 2 रहेगी। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th रो में कितनी सीट्स है, मतलब आपको T15 फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको T15 फाइंड आउट करना है तो आपकी n की वैल्यू 15 हो जाएगी, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स इन द ऑडिटोरियम। टोटल सीट्स, टोटल कितनी रो है? 27। तो टोटल कितनी सीट्स? तो S27। तो यहाँ पर n की वैल्यू 27 आती है, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। ऑल द वैल्यूज विल बी सेम फॉर बोथ द सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें T15, so A will be same, D will be same. A for S27, A will be same, D will be same. Okay, for both of these. But the value of n will be changed. Okay, when you are solving T15, the value of n will be 15. Okay, and when you are solving for S27, the value of n will be 27. ये डिफरेंस रहेगा, तो यही आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ फॉर T15। So पहले हम T15 के लिए सॉल्व करते हैं। So for that we will use the formula TA is equal to A plus n minus 1D. So T15 is equal to value of A is 22 plus n की वैल्यू 15 minus 1, value of D is 2. 22 plus 15 minus 1, 14. 14 into 2. 14 2s are 28. Okay, now 22 plus 28, 8 plus 2, 10, and 2 plus 2 plus 1, 50. So there are 50 seats in the 15th row. Okay, आपने find out क्या किया है? What is the, sorry, T15, sorry, value of A is 20 ना, मैं 22 ले लूँ। So 20 plus 28, 48. Okay, so there are 48 seats. There are 48 seats in the 15th row. तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आया। क्या सॉल्यूशन है आपका? 15th रो में कितनी सीट्स है? 48 सीट्स है। नाउ वी विल सॉल्व फॉर S27। मैं गिवन जो है ये इजी है, नाउ यू कैन डू इट बाय योर ओन। मैं इसको वाइप करती हूँ। नाउ वी विल सॉल्व फॉर S27। देखो ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। S27 क्वेश्चन सेम है, सब कुछ सेम है। ओके, द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड। Sn is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1d. Okay, what is the value of n now? 27. Okay, यहाँ पर कितनी थी? 15 थी। As per the question, यहाँ T15 फाइंड आउट करना है, यहाँ S27 फाइंड आउट करना है। So the value of n will be changed.
27/2, 2 इंटू ए की वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ पर भी कितनी थी 20, यहाँ पर भी 20 रहेगी। वैल्यू ऑफ n 27 minus 1, वैल्यू ऑफ d will be also same 2. It is indivisible, so write down as it is. 22 is 40 plus 27 minus 1, 26 into 2. So 27/2, 40 plus 26 2s are 2 6 are 12, 2 2s are 4 and 1 5. Okay, so 40 plus 52, 92. So 27/2 into 92, you can cancel it. 2 4s are 8, 2 6 are 12. So 27 into 46. Okay, आपको ये दोनों मल्टीप्लाई करना है. So you will get 1242. So there are 1240 seats in the auditorium. So you can write down in the sentence, there are 1242 seats in auditorium. तो देखो क्वेश्चन सेम था, यहाँ पर आप मुझे कब से यही था कि मैं आपको ये टाइप बताऊं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो n की वैल्यू बहुत कंफ्यूज होते हैं कि n की वैल्यू क्या होगी. तो n की वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट रहेगी. a की वैल्यू, b की वैल्यू फॉर द क्वेश्चन विल बी सेम, बट द वैल्यू ऑफ n विल बी चेंज एज पर योर नीड. यहाँ पर तुमको नीड थी 15th रो में फाइंड आउट करनी थी. सो द वैल्यू ऑफ n इज 15. यहाँ तुम्हारी नीड थी टोटल 27 रोज में कितनी सीट्स है. तो आपकी यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई थी, 27 हो गई थी. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट. Whatever doubts you will have, we will see in the last 5 or 10 minutes. बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आता है मतलब मैक्सिमम टाइम्स में पूछ चुका है. so there is a possibility that it may ask for the future exam also. Easy है, try to do. बहुत easy है. Okay, now we will see the fifth question based on the temperature which is in AP. Okay, so now the fifth question is, you can see in your textbook also. Kargil temperature was recorded from Monday to Saturday. Kargil temperature was recorded from Monday to Saturday, means for 6 days, not for 7 days. Okay, कारगिल का जो टेम्परेचर था, इट वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ऑल रीडिंग और इन एपी. अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया है, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन इट इज इन एपी एंड ऑल रीडिंग्स आर इन एपी. whatever temperature they have recorded from Monday to Saturday, they were gradually increases or decreases, whatever it may be. So all readings are in AP. thus अब यहाँ पर देखो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है क्या है, the sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 degrees more than the temperature of five degrees C more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन दे दी है. क्या कंडीशन है कि जो मंडे और सैटरडे का सम का जो टेम्परेचर है वो 5 मोर है, किससे,
सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, हम इसको बहुत इजीली वे में लिखेंगे, देख लेना आप लोग. इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30°C, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30°C, आपको एक दिन का टेम्परेचर बता दिया है कि जो वेडनेसडे है उसका टेम्परेचर कितना है, -30° है. सो then find the temperature of all 5 days. मतलब अभी तो 5 ही दिन बचे ना, वेडनेसडे को तो हमको पता चल गया है, तो मंडे टू सैटरडे 6 days आ गए, एक दिन का हमको पता चल गया, तो अभी 5 days का हमको पता करना है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ऑल 5 days. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज मंडे टू सैटरडे, हम सपोज करेंगे व्हाट आर द टेम्परेचर. ठीक है, सो मैं यहाँ पर पहले कर लेती हूँ, मंडे लिख लेते हैं हम. सपोज द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वाज, कैसे सपोज करेंगे हम, देखो ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, कितना दिन हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड a plus 5d और सैटरडे. ठीक है, ये हमने इंक्रीज करते गए हैं. आपको ऐसे करना है, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d. ओके, ऐसे आपको सपोज करना है. ठीक है, ये हमारा सब आ गया, हमने सपोज कर लिया. नाउ वी विल डू, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन 1 क्या है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. सम मीन्स प्लस, तो मंडे एंड सैटरडे का जो सम है, मंडे प्लस सैटरडे, इसका जो सम है मोर देन द was मतलब इज इक्वल टू या इज इक्वल टू 5 मोर, मतलब 5 प्लस 5 मोर मीन्स 5 प्लस 5 मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. 5 मोर के लिए प्लस लग गया, अगेन ट्यूसडे एंड सैटरडे. मंडे एंड सैटरडे का जो सम है वो इक्वल है 5 मोर है. 5 मोर मीन्स 5 प्लस, मोर के लिए आप प्लस का यूज करेंगे. 5 मोर द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. ओके, सो 5 प्लस ट्यूसडे प्लस सैटरडे. अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुटअप कर देंगे. मंडे के लिए क्या है, ए है. सैटरडे के लिए क्या है, a प्लस 5d. ओके, 5 एज इट इज. ट्यूसडे के लिए क्या है, a प्लस d. सैटरडे के लिए क्या है, a प्लस 5d. अब जो सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, 5d कैंसिल, a कैंसिल, अगेन a कैंसिल. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचा है, एंड इन द राइट हैंड साइड व्हाट हैव वी लेफ्ट, 5 प्लस d. 5 प्लस d बचा है. इट मीन्स दैट अभी 5 को हम सेकंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -5. तभी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है. ओके, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे हम, आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ तक कि हमारा जो कंडीशन था विच आई हैव रिटन इन द कलर चॉक, यहाँ तक कि हमारा हो चुका है. Now we'll go to the second condition. If the temperature of Wednesday was -30°C, so the temperature of Wednesday is equal to -30°C. So Wednesday क्या है, हमने क्या सपोज किया उसके लिए वो देखेंगे हम. For Wednesday what we have supposed, a plus 2d. So a plus 2d is equal to -30. Okay, now we know the value of d, that is -5. A plus 2 into -5 is equal to -30. So it will become -10. A minus 10
is equal to minus 30. So minus 10 will come here, it will become plus a plus minus 30 plus 10 plus minus minus 30 minus 10 minus 20. So the value of a is minus 20. Okay? अभी हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है. Now we will find the value of all 5 days temperature. So सबसे पहले हम लेंगे मंडे. तो मंडे के लिए क्या आया था हमारा, और मंडे we supposed a, so that is minus 20 degrees. Okay? For Tuesday, a plus d. So a plus d. A plus d means minus 20 plus minus 5. ये आपको ऐसे पूरा सॉल्व करना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है. प्लस माइनस 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 20 माइनस 5 माइनस 25. तो ऐसे ग्रेजुअली आते जाएगा माइनस 20 माइनस 25 माइनस 30, क्योंकि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ना हमारा, तो माइनस 30 तो आ गया था, हमको पहले से पता था. फिर हम देखेंगे थर्सडे का a प्लस 3d. सो यू इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट. मैं यहाँ ऊपर का वाइप करके आपको बाकी जो रिमेनिंग डेज है उसके बता देती हूँ. आप ले स्क्रीनशॉट. मैं पूरा एक मंडे टू सैटरडे पूरा टेम्परेचर कैसे निकालना है वो बता देती हूँ आपको. तो देखो हमने क्या सपोज किया था, मंडे का हो गया, मंडे का हो गया, ट्यूसडे का हो गया, वेडनेसडे का पता था, थर्सडे. फॉर थर्सडे वी सपोज a plus 3d. so a plus a is minus 20 plus 3 into minus 5. okay, so 3 into minus 5, 3 5s are 15, minus 20 minus 15, you will get minus 35 degrees C. okay, then after that Friday. फ्राइडे के लिए क्या सपोज किया था, a plus 4d. so the value of a is minus 20 plus 4 into minus 5. so minus 20 minus 20, you will get minus 40. for Saturday, a plus 5d. so minus 20 plus 5 into minus 5, 4, 5 into minus 5. so minus 20 minus 25, you will get minus 45 डिग्री C. तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी minus 20 minus 25 minus 30 minus 35 minus 40 minus 45. so in this way you can solve. ये I think so 2 times the question has been asked in the exam, in the board exam. 2 बार आ चुका है ये, the same question, no with no changes, ये आ चुका है. और प्रीलिम्स में तो बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स विच वी हेल्ड थ्रू द BMC. तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. पहले क्या करना है आपको, पहले आपको सपोज करना है कि क्या है, कितने डेज है. सो a प्लस d, a प्लस 2d, आप इस तरीके से पूरा आप इसको सपोज कर लो. ओके, आप डे वाइज इसको सपोज कर लो. ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट एवर, क्योंकि आपकी फर्स्ट कंडीशन है वही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ये जो कंडीशन थी कि द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे. बस इतना, यही कॉम्प्लिकेशन था. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी इजी. ओके, तो यहाँ पर देखो हमने मंडे सैटरडे की जगह हमने जो वैल्यूज हमने सपोज की थी, वी पुट अप दैट वैल्यूज a plus 5d, 5 plus a plus d, a plus 5d, 5d cancel, a cancel again, a is cancel, then only what will left, 0 is equal to 5 plus d, then d is equal to minus 5. फिर हमको टेम्परेचर पता था वेडनेसडे का minus 30, we have taken that value, a plus 2d is equal to minus 30, d is minus 5, so a minus 10 will go there, it will become plus. So minus 30 plus 10, it will become minus 20. So we got both the values of a and d. Then we will solve for all the 5 days. Okay? कुछ confusion है, कुछ है, so you can ask me in the last time. Okay? हमारा इसके बाद एक ही क्वेश्चन रह गया है. We will see that question. Then our practice set will finish. Okay? बहुत easy है.
बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है और कुछ भी बात नहीं है. Again we are repeating the same thing. If you will pay your attention completely over here, then it will be easy for you. Okay. Now the sixth question, the last question of practice set 3.4 is on the environment day, on the world's environment day. Tree plantation program was arranged on a land. Okay. Tree plantation program, as you all know that. Tree plantation program was arranged on a land, okay, which is triangular in shape. जो लैंड थी वो ट्रायंगुलर इन शेप थी. यहाँ पर हमको बता दें कि जो लैंड था वो ट्रायंगुलर इन शेप था. सो ऑल द रोज विल नॉट बी सेम. ओके. ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट, क्वेश्चन बहुत लेंथी है बट सॉल्यूशन बहुत इजी है. ट्रीज आर प्लांटेड in such a way that अब कैसे उसको प्लांटिंग की गई थी, क्योंकि लैंड जो था वो ट्रायंगुलर था. सो such that in the first row one tree is planted. In the first row one tree. In the second row 2 trees. In the third row 3 trees. इस तरीके से उसको प्लांट किया गया था एंड सो ऑन. ठीक है, सिंपल है कि फर्स्ट रो में एक ट्री है, यहाँ पर फर्स्ट रो में एक ट्री है, सेकंड रो में 2 ट्री है, ओके, थर्ड रो में 3 ट्रीज है. तो ये जो हमारा लैंड था वो ट्रायंगुलर था, बिकॉज ऑफ दैट इस तरीके से उसको प्लांटिंग की गई है. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज. तो कैसे बनी, टोटल कितनी रोज बनी, 25. जैसा हमारा ऑडिटोरियम वाला क्वेश्चन था ना, ऐसे ये भी क्वेश्चन है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज. मतलब यहाँ पर कितनी रोज है, 25 रोज है. मतलब आपको S25 फाइंड आउट करना. बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर इन शेप है, तो इस तरीके से वहां पर प्लांटिंग हुई होगी. आई शोड यू लाइक दिस. ओके, सो नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन. बहुत इजी है. ओके, राइट डाउन, विल राइट डाउन द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओके, ट्रीज आर प्लांटेड, trees are planted in first row 1 tree, second row 2 tree, third row 3 tree. Okay, so therefore it is in AP. क्योंकि यहाँ पर आपको बताया नहीं था कि इट इज इन एपी. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कारगिल वाला, उसमें बता दिया था आपको ऑलरेडी कि इट इज इन एपी. तो हमको नीड नहीं हुई थी. तो हमारा जो एपी है वो कैसे है, 1 2 3 एंड सो ऑन. मतलब फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकंड रो में 2 ट्री है, थर्ड रो में 3 ट्री है. तो हमारा एपी कैसे बनेगा, 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, नाउ राइट डाउन ए इज इक्वल टू 1, D is equal to T2 minus T1, that is 2 minus 1, so D is equal to 1. A भी 1 है, D भी 1 है. कितना इजी हो गया आपके लिए, कुछ आपको सॉल्यूशन में डिफिकल्टी नहीं आएगी. हाउ मेनी टोटल रोज आर देयर, so there are 25 rows. ठीक है, there are 25 rows, therefore n is equal to 25.
n की वैल्यू 25 है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, S25 टोटल कितने ट्रीज हैं ये आपको फाइंड आउट करना है, आपको एडिशन करना है. सो विल राइट डाउन अगेन फॉर्मूला ऑफ Sn, n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. ओके, S25 फाइंड आउट करना है आपको. तो 25 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a is 1, 2 into 1 plus 25 minus 1 into 1. It is indivisible, write down as it is. 2 ones are 2 plus 25 minus 1, 24. 24 ones are 24. 1 1 है, so it is very easy. Now 2 plus 24, 26. 25 upon 2 into 26. Cancel कर दो, 2 ones are 2, 2 threes are 6. So 25 into 13. Multiply कर लो, 13 5s are 65. 13 2s are 26. 26 and plus 6, 32. So there are 325 trees in 25 rows. इतने प्लांटेशन हुए थे. बहुत इजी था क्वेश्चन, इतना लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन इतना सही है. ये इतने ही सॉल्यूशन है आपका, और वो भी कितना इजी है. a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 25 है, आपने उसमें से -1 कर दिया, 24 हो गया. मतलब जो सॉल्यूशन भी है, जो कैलकुलेशन भी है ना, वो बहुत इजी है. ओके, so question was so much lengthy. Sometimes what you people are doing, that whenever you are looking at the question, if the length of the question is very long, so at that time you just skip the question. At least try to read, try to find out the givens and try to find out that what you have to find. अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज किया, एंड स्पेशली फ्रॉम दिस चैप्टर, इफ वर्ड्स प्रॉब्लम आर देयर, so definitely attempt this question. क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ तो बहुत ज्यादा लगती है आपको, अननेसेसरी थिंग्स आर गिवन, ये है वो है, बट जो सॉल्यूशन है बहुत इजी है. 1 2 3 एपी. अगर मैं आपको ये अगर मैं वर्ड्स प्रॉब्लम हटा देती हूँ, मैं आपको दे देती हूँ कि एपी है 1 2 3. ओके, फाइंड आउट S25. आप बोलते कितना इजी है, 1 2 3 है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो बहुत इजी है. तो अगर मैं आपको ये वर्ड्स प्रॉब्लम में ना देती हूँ, अगर आपको मैं सिंपल क्वेश्चन देती, तो आप उसको, आप सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट करते. लेकिन लेंथ ऑफ क्वेश्चन को देख के आप व्हाट यू ऑल आर थिंकिंग, नो इट मस्ट बी हार्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो स्पेशली जो इस चैप्टर की है ना वर्ड्स प्रॉब्लम, आप उसको अटेम्प्ट करो. Okay, if you want to take the screenshot, take the screenshot and tell me what are your conclusion regarding words problem and regarding this chapter, because here we finish the chapter for practice set 3.4. After that we will solve from tomorrow problem set. हम कल से प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे. ओके, टेल मी, कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को? आपको इसमें सिंपल टीएन था, एसएन था, उसी के ऊपर बेस था हमारा पूरा चैप्टर. ओनली 4 practice sets were there. In the first we have seen very basic questions, find out whether it is an AP or not, find out the value of D, find out the value of A, find out the AP. सेकंड में हमने टर्म्स को देखा है, थर्ड में हमने सम ऑफ एन टर्म को देखा है, एंड इन द 3.4 यू हैव सीन द वर्ड्स प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी द प्रॉब्लम. रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. If you have a problem, unmute yourself. Shruti, Shruti, ask your doubts. मैम है, yes. मैम मैं ना न्यू स्टूडेंट हूँ, मुझे आप बता सकते हो आप अभी तक आपने कौन से लेसन सीखा? मैंने इससे पहले विक्रांत सर ने लिया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ऑल. मैंने थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मैंने यही स्टार्ट किया है फ्रॉम द लास्ट 2 वीक. दिस इज द थर्ड वीक. ओके, ये थर्ड वीक है जो हमारा चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टिल नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी हमारा प्रॉब्लम सेट भी है. तो ये मैंने जो 4 वीक थे मेरे, उसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही लिया, यही चैप्टर लिया. इससे पहले हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, वो विक्रांत सर ने लिया था, मैंने ये चैप्टर लिया है. ओके, थैंक यू मैम. वही पूछो. ओके, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है? मेरे में से नंबर ले ले, उसमें किरण सुमन पापा के में नंबर लेना है.
यस किरण के टीचर क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बार सॉल्व करके बताओ ना टीचर प्लीज। 4 वाला, ओके। कौन सा था हमारा 4 वाला? बोलो। टीचर ऑडिटोरियम वाला ना? यस टीचर। तो आपको बोलना चाहिए मैम ऑडिटोरियम वाला जो क्वेश्चन था 4 वाला मीन्स व्हाट। आपको बहुत इजी था। देखो आपने ये देखा ना ये कैसे किया है। इसमें 25 रोज थी, उसमें 27 रोज है। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। उसमें कैसा था कि ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 27 है। ठीक है, फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 सीट्स है एंड सो ऑन। ऐसा था। आपको क्या फाइंड आउट करना था कि T15 कितना है, 15th रो में कितना है, और टोटल जो 27 रोज है उसमें टोटल कितनी सीट्स है। ये आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी थी। ये कौन तो सा मैंने इसको सिंपल कर दिया। फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकंड रो में 22 सीट्स, थर्ड रो में 24 सीट्स एंड सो ऑन। फाइंड आउट करना है आपको T15 एंड S27। ठीक है, पहले मैं T15 फाइंड आउट करती हूँ कि 15th रो में कितना है। हम दोनों को अलग अलग करते हैं। तो बेटा म्यूट योर सेल्फ, श्रुति म्यूट योर सेल्फ बेटा। ओके, तो 15th रो में कितना है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए वैल्यू ऑफ ए इज 20, वैल्यू ऑफ डी इज 22 minus 20, that will be 2. The value of n is 15. Okay, so Tn is equal to a plus n minus 1d. 15th रो में कितना है उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो T15 is equal to 20 plus 15 minus 1 into d, d is 2, 20 plus 15 minus 1 14, 14 into 2 28, so 20 plus 28 48, so there are 48 seats in the 15th row. ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हुआ कि 15th रो में कितनी सीट्स है। सो देयर आर 48 सीट्स इन द 15th रो। अब जो 27 था कि टोटल कितनी है, टोटल पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज है, उसमें कितनी सीट्स है। तो आपको S27 फाइंड आउट करना। अगेन A विल बी 20, B विल बी 2, बट N विल बी 27, क्योंकि यहाँ पर हमको 27 रोज का फाइंड आउट करना है कि टोटल कितनी सीट्स है। यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करना था कि 15th रो में कितनी सीट्स है। सो S27 इज इक्वल टू n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. So 27 upon 2, 2a, 2 into 20 plus 27 minus 1 into 2. 27 upon 2, first solve the bracket, 22s are 40 plus 26 minus 27 minus 1, 26, 26 into 2, you will get 52. So 40 plus 52, you will get 92. So 27 upon 2 into 92. Cancel it. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 6s are 20. Now इस दोनों का multiplication कर दो 27 into 46. So after multiplication, you will get how many seats are there? 1242. ऐसे सॉल्व करना। मैंने वर्ड्स फॉर्म लिखा ही नहीं है, मैंने उसका जो मेन था क्या एपी था क्या फाइंड आउट करना था मैंने वो लिखा है। इजी है। 20, 22, 24 ये ऐसा एपी में है। T15 फाइंड आउट करना है, S27 फाइंड आउट करना है इन द सेम क्वेश्चन। समझा आपको बेटा? ओके, एनीवन एल्स? कोई और है? कुछ डाउट्स हैं? समित है, प्रगति है बेटा, यू हैव रेज्ड अप योर हैंड। सो हेलो मैम। यस मैम अपने ना थर्ड सम में ना मिस्टेक कर दिया है। ओके, वी विल सी दैट। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन भी। ओके, द थर्ड क्वेश्चन वाज सचिन इन्वेस्टेड वाला ना। ओके, उसने क्या क्या किया था? 5000, 2000, 7000, 9000। ओके, तो 5000, 7000, 9000। ओके, ये हमारा एपी था एंड सो ऑन। उसने टोटल कितने साल इन्वेस्टमेंट किया है? 12 years किया उसने इन्वेस्टमेंट। सो A इज इक्वल टू 5000, D इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000,
दैट इज 2000. n इज इक्वल टू 12 क्योंकि उसने 12 ईयर इन्वेस्टमेंट किया है और आपको फाइंड आउट करना है टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है. सो S12 इज इक्वल टू n by 2 अंडर ब्रैकेट 2a plus n minus 1d. Okay, so n by 2 that is 12 upon 2, 2 into 5000 plus 12 minus 1 into 2000. Okay, so 12 upon 2 that will be 6, 2 5s are 10, so 10,000 plus 11 into 2,000, so 22,000. 22,000. So 10,000 plus 22,000, 32,000. 6 into 32,000. Yes, correct. मैंने यहाँ मिस्टेक किया था शायद से. यहाँ पर एडिशन के टाइम पे शायद हुआ होगा. मैंने उसको डायरेक्टली है तो मल्टीप्लाई कर दिया था. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 twos are 12, 6 threes are 80 and 1 90. Yes, correct. 1,92,000. Sometimes it happens actually. Okay, so you can take the screenshot. अगर आप इसको ऐसा बना लेते ना आप, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इसको in such a way that if you do that. Yes, beta. Teacher, will you explain fifth one? Which one? Fifth one, teacher. Carly's temperature was. That was so easy. कारगिल का जो टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया था फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ओके, इट वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. तो फर्स्ट सपोज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ओके, मंडे टू सैटरडे उसको सपोज करना. सो A for Monday, A plus D for Tuesday, A plus 2D for Wednesday, A plus 3D for Thursday, A plus 4D for Friday and A plus 5D plus for Saturday. ये आपको ऐसे पूरा सपोज करना है. उसके बाद जो कंडीशन दी हुई थी वो क्या दी हुई थी? The sum of the temperature of Monday and Saturday. Monday और Saturday का जो टेम्परेचर का सम है was 5 more. This 5 plus 5 more the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. इन दोनों के सम के इक्वल था. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी. इसके अंदर आपको वैल्यूज रखना था. मंडे की वैल्यू A, सैटरडे की A plus 5D, अगेन 5 plus ट्यूसडे की A plus D और सैटरडे की A plus 5D. ये कैंसिल हो जाएगा. 5D कैंसिल, A and A will cancel. Okay, this A and this A will cancel. Again I've written Tuesday A plus D. Okay, तो ये सब कैंसिल हो गया. अब आपके पास सिर्फ क्या बचा है? लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 5 plus D. ओके, अब ये 5 माइनस हो जाएगा. जब वो सेकंड साइड में जाएगा तो D is equal to -5 हो जाएगा. ये ऐसे करना था. उसके बाद आपको दिया हुआ था वेंसडे का टेम्परेचर कितना था? -30. वेंसडे की वैल्यू कितनी है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. A plus 2D is equal to -30. D की वैल्यू फिर रख दो. A plus 2 into -5, so -10. A minus 10 is equal to -30. माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा. -30 plus 10, so you will get -20. ये देखो, तो आपके पास D की भी आ गई, A की वैल्यू आ गई. बस आपको पुटअप करते जाना है और आपको मिलते जाएगा सारा वैल्यूज. मंडे का तो आपको मिल गया -20. फिर A plus D सॉल्व करो. A plus 2D ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. A plus 3D सॉल्व कर दो. सॉल्व करते जाना, मतलब वैल्यूज दोनों आ गई आपके पास, A की भी और D की. बस आप लोग पुटअप करते जाओ और आपको मिल जाएगा. सिर्फ ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी. आया समझ में? Okay, so I hope you all understand this problem set. More example we'll solve in the problem set. So we'll continue again tomorrow from the problem set. In the problem set you will get very basic question. Again we will solve the basic questions. So it will, those who have not attended the first and second lecture and the first week lecture and the second week lecture must attend tomorrow, because when we will solve the problem set, whatever you have your lackings are there, it will be sorted out. Okay,
तो आप लोगों को फिर कल प्रॉब्लम सेट में स्टार्ट करूंगी तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, जो आपका छूट गया है आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करो उसको, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो मैम, शैल आई वाइंड अप?